Hello students, welcome to my new video and thanks for watching my previous video. In last video, I just discussed the nomenclature of organic compound. In that video, I just gave you some basic knowledge about the nomenclature, what are functional group, how can you name with a functional group compound and multifunctional group compound. My new video cover following topics. This is also based on the nomenclature of organic compound. After that I will prepare new video on the new topic, but here in this video I just covered the following topic: nomenclature of aromatic compounds, bond line notation and nomenclature, writing structure of organic compound and nomenclature of bicyclic compounds. These are the some few important topics that is covered in this video. So please watch the video till the end. This is very important one. In board exam, competitive exam, minimum 2 marks question asked over the nomenclature of organic compound in organic chemistry section. So please watch these videos, previous one and also this one, that will help you a lot. Please like the video and share as much as you possible so that more and more students go through that and can understand nomenclature of organic compound in a simple way. Tell your friends to subscribe my channel so that they also get the notification of my new videos. Very soon I will also prepare my videos for UP board students separately. I hope that these videos can work for all students except the medium, Hindi or English. But in all videos I am explaining all the topics in Hindi and English both. So now starting my video. Nomenclature of aromatic compounds. Since as we know that aromatic compounds are those compounds which contain aromatic compounds. Aromatic compounds are those compounds contain planar cyclic ring, that is benzene ring, and have 4n+2 pi electron. These compounds have two parts. पहले मैं ये बता रहा हूँ कि aromatic compounds क्या हैं. Generally aromaticity और aromatic compounds के बारे में बात करें, those compounds which has at least one planar cyclic ring and follow Huckel's rule, that is 4n+2 pi electrons containing property, are called aromatic compounds. Aromaticity and aromatic behavior will be discussed later on. Now here I want to tell you that aromatic compounds have two parts. One, nucleus. Planar cyclic ring को nucleus कहेंगे. In generally here in your syllabus most of the aromatic compounds are benzenoid that contain benzene nucleus, in which benzene ring is a planar cyclic ring, contains 6 carbon atom, 1 2 3 4 5 6, and each carbon is attached to one hydrogen. Also have alternative single and double bond, that is calculate structure of benzene ring, and it is the resonance hybrid of these two particular resonating structures. So one aromatic compound must have benzene ring, and second one, it has a side chain in which the alkyl groups containing at least one carbon is attached to benzene ring, replacing hydrogen atom from any corner of the benzene ring. This is called side chain. Now disubstitute aromatic compounds, when the two hydrogen of benzene ring from the two corners are replaced by the two atoms or groups, are formed disubstituted isomers, and disubstituted isomers are generally three types: ortho, meta and para. When the two groups are attached to the adjacent position 1 2 ये दोनों, वैसे तो 1 2 3 4 5 6 मैंने 1 2 और 1 6 लिखा है, लेकिन वो अगर ऑर्थो है तो 1 2 ही रहेगा, 1 6 नहीं. मैंने यहाँ से इसलिए लिखा है, यहाँ भी आ सकता है ये x,
लेकिन वो पोजीशन फिर वो 1 2 हो जाएगी, यानी 6 कार्बन पर अगर है तो फिर वहीं से गिना जाएगा 1 2। ये ऑर्थो कहलाएंगे जब भी कभी वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। दूसरा, अगर 1 3 पर है, सेम ग्रुप्स हटाकर एक दूसरे से डाइसब्स्टिट्यूट हैं, तो वो कहलाएगा मेटा आइसोमर। और अगर 1 और 4 पर हैं तो वो कहलाएगा आपका पैरा। दैट मीन्स डाइसब्स्टिट्यूटेड आइसोमर्स आर ऑफ two types, ortho, meta and para. When the two same substituent are placed adjacent to each other, then it is ortho isomer. When the two same substituent are present to one and third carbon of benzene ring, that is they are called meta. And if the two substituents are present at first and fourth position, then they are called para isomer. 1 2 3 4 5 6 carbons are there. Now starting the different compounds of a class of aromatic compounds. पहला है aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons are named as alkyl benzene. When the इसके कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूं। When the side chain contain more than 6 carbon or a functional group, then benzene ring is named as सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल। कहने का मीनिंग ये है कि जब भी कभी किसी साइड चेन में कार्बन का नंबर 6 से अधिक हो जाए एल्काइल ग्रुप में या एल्काइल चेन में, अथवा वहां कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक कार्बन है और वो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है, तो बेंजीन ना कहकर उसको हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बेंजीन का नाम देंगे और उसका नाम देंगे हम फिनाइल। दूसरा, व्हेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप is directly attached to benzene ring, then they are named as the on the basis of preferences of the functional group. अगर कहीं एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगे हैं बेंजीन रिंग पर, कॉर्नर्स पर, एक से अधिक कॉर्नर्स पर, तब उनका नेम जैसे मैंने पहले बताया था प्रीफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल है उसके बेस पर दिया जाएगा। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एल्काइल बेंजीन कहलाते हैं। मैंने पहले बताया जैसे अगर कोई सबसे सिंपल एल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है तो ये जनरल नेम है इसका टॉलुइन, वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। यहाँ हमने 3 कार्बन की चेन की है, लेकिन बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है वो सेकंड कार्बन है, 1 2 3। अब यहाँ पर इसमें 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, लेकिन ये प्रोपाइल हो जाएगा तो 2 प्रोपाइल, क्योंकि सेकंड पर है बेंजीन, और इसको जनरल नेम देंगे तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब डाइसब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो सेम ग्रुप लगे हुए मिथाइल ग्रुप फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर, तो ये ऑर्थो आइसोमर है, ऑर्थोजाइलिन कहलाता है। ये कंपाउंड जिनमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं बेंजीन रिंग से, जाइलिन कहलाते हैं। ये ऑर्थोजाइलिन। 1 3 पर लग गए 2 मिथाइल ग्रुप तो ये मेटाजाइलिन, 1 4 पर लग गए तो पैराजाइलिन। हेलोजन डेरिवेटिव, उसके बाद नेक्स्ट क्लास है और एरोमेटिक कंपाउंड्स, दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स। हेलोजन्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब भी कभी FCl VRI लगे होंगे न्यूक्लियस बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होंगे तो वो हेलोजन डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जैसे Br लग गया है बेंजीन रिंग से तो ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पर देखिए एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया हमने और एक Cl लगा दिया, तो 1 2 3 4 पर है तो 4 क्लोरो, ये जनरल नेम अभी हमने क्या बताया टॉलिन, 4 क्लोरो टॉलिन। अगर साइड चेन से लगे हों हेलोजन तो उनके नाम थोड़ा डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे मिथाइल ग्रुप का एक एच हटाकर हमने क्या लगा दिया Cl, तो इसका नाम देखिए यहाँ पर हमने बताया फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो एक पर 1 पर भी फिनाइल ग्रुप है तो फिनाइल क्लोरो, एक कार्बन है तो यह क्या होगा मीथेन। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब 2 Cl लग गए तो फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ पर अब एक ही कार्बन है तो फिनाइल, ये फिनाइल है बेंजीन रिंग, और ट्राइक्लोरोमीथेन। ये तो आईपीसी नाम रहे। अगर जनरल नाम देते हैं इनको तो अगर CH2 ग्रुप है बेंजीन रिंग से अटैच C6H5CH2, मेरा कहने का मतलब है, तो वो कहलाएगा बेंजाइल ग्रुप, और Cl लगाओ तो बेंजाइल क्लोराइड। अगर बेंजीन रिंग से CH लगा हुआ है तो बेंजल, और Cl है तो बेंजल क्लोराइड। अगर ये बेंजीन रिंग से C लगा हुआ अकेला, यानी तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हैं हेलोजन के द्वारा, तो बेंजो क्लोराइड या बेंजो ट्राइक्लोराइड भी बोलते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है जो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने पहले ही बताया अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसका जो बेंजीन रिंग है उसको हम क्या नेम देंगे, आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरफ फिनाइल देंगे। अगला क्लास है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH अटैच होगा बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन से अगर OH डायरेक्टली अटैच होता है तो वो कंपाउंड कहलाते हैं फिनॉल्स। अब यहाँ पर फिनॉल है ये कंपाउंड, लेकिन यहाँ पर देखिए OH भी लग गया और मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो गया, तो 1 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा फिनॉल। ये क्या हो गया आपका 1 2 मिथाइल फिनॉल आईपीसी। इस तरह से इसमें भी साइड चेन हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट देखिए CH2OH, अभी मैंने बताया ये बेंजाइल ग्रुप है तो बेंजाइल एल्कोहल हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। लेकिन इसका नाम अगर हम आईपीसी नेम देंगे तो फिनाइल, एक कार्बन मेथेन ऑल, सफिक्स क्या आता है ऑल, तो फिनाइल मेथेनॉल।
फिनाइल मेथेनॉल। अगर हमने डाई सब्स्टिट्यूट बात करें अल्कोहल की तो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, ऐसे ये कंपाउंड कहलाता है कैटिकॉल। क्या कहलाता है आपका? कैटिकॉल। इसी तरह के इसका 1,3 मेटा आइसोमर जो है 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन कहलाएगा, लेकिन ये कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका? रिसोर्सिनॉल। क्या कहलाएगा आपका? रिसोर्सिनॉल। अगला है कंपाउंड, अगला क्लास है कंपाउंड का एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड है तो CHO रहेगा और कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O रहेगा, जिसके दोनों ओर एल्काइल ग्रुप या एक तरफ एल्काइल और एक तरफ फिनाइल ग्रुप होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड है तो देखिए, एक अगर CHO डायरेक्टली अटैच है तो कंपाउंड कहलाता है बेंजल्डिहाइड। अब यहाँ पर फिर बात आ जाती है कि एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगे हों। देखिए प्रीफरेंसेस का मसला आ गया। यहाँ पर प्रीफरेंसेस को देंगे तो OH लोअर प्रीफरेंस पर है 1,2 तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। CCH5CHO क्या है? बेंजल्डिहाइड है, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कीटोन की बात करें तो देखिए यहाँ पर CO ग्रुप लग गया, एक तरफ एल्काइल मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ क्या है? फिनाइल। तो ये कंपाउंड कहलाता है एसिटोफिनॉन। ये जनरल क्लास हैं, इसी के नेम पर या इनके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे आगे जाकर कोई इनसे आगे फर्दर इनके आइसोमर्स फॉर्म होते हैं तो। और वैसे ये जनरल क्या कहलाएगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं इसको। ये जनरल है, लेकिन IUPAC नेम इसका क्या कहते हैं हम? एसिटोफिनॉन। अगर CO ग्रुप की तरफ दोनों तरफ फिनाइल लगे हैं तो डाइफिनाइल कीटोन है जनरल। वैसे IUPAC नेम इसका क्या कहेंगे हम? बेंजोफिनॉन। क्या कहेंगे हम? बेंजोफिनॉन। इससे बाद अगला, अब देखिए ये साइड चेन में लग गया। किसमें लग गया आपका? साइड चेन में। तो 1, 2 पर क्या लगा हुआ है? ये फिनाइल ग्रुप है। 2 फिनाइल, 2 कार्बन की चेन है, एथेन अल, 2 फिनाइल एथेनॉल। क्या नाम आ जाएगा इसका? 2 फिनाइल एथेनॉल IUPAC नेम। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। अगर फंक्शनल ग्रुप COH अटैच है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली तो वो कंपाउंड कहलाते हैं आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। CCH5COOH या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है COH तो ये कहलाता है बेंजोइक एसिड। अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट दूसरे लगे हुए हैं तो 1, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। यहाँ पर देखिए OH और COH 2 ग्रुप आ गए बेंजीन रिंग से। अब कैसे नाम देंगे? क्योंकि COH प्रीफरेंस में ऊपर है तो सफिक्स इसका आएगा, ये क्या होगा? प्रीफिक्स में चला जाएगा 1,2 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और ये जनरल नेम है इसका सैलिसिलिक एसिड। एसिड डेरिवेटिव्स हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें कि COOH जो ग्रुप है उसका OH या H हटाकर हम डिफरेंट अगर हम फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं या कोई ग्रुप लगा देते हैं तो वो एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। जैसे कि COCl, COOH हटाकर हमने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया तो एक क्लोराइड बन गया, और चूंकि ऑयल क्लोराइड लगाते हैं यहाँ पर तो ये बेंजीन का फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेंजोइल क्लोराइड। CONH2 एमाइड्स ग्रुप हो गया CONH2 तो बेंजामाइड। यहाँ पर एस्टर ग्रुप हो गया COOR, कौन सा ग्रुप आ गया आपका? ये COOR। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर R ग्रुप कौन सा? इथाइल है, C2H5 है तो इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। ये एनहाइड्राइड है, CO बीच में है और दोनों तरफ क्या है? फिनाइल ग्रुप है तो ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है क्योंकि बेंजोइक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो इस तरह से एसिड डेरिवेटिव्स कौन कौन से हुए आपके? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजामाइड, एस्टर्स और ओइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से ये दूसरा नेक्स्ट क्लास हुआ। अगला क्लास एरोमेटिक कंपाउंड्स का एमिनो डेरिवेटिव्स, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा आपका? NH2 रहेगा। अगर बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप लगा हुआ है डायरेक्ट तो वो कंपाउंड कहलाता है एनिलीन और एमिनो बेंजीन। यहाँ पर फिर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है, एक CH3 एल्काइल ग्रुप लगा दिया है तो 4 मिथाइल 1, 2, 3, 4 मिथाइल एनिलीन, और इसका दूसरा नाम भी हम कहते हैं पी टॉल्यूडीन क्योंकि टॉलिन है और एनिलीन की जगह यहाँ पर टॉलिडीन कहलाता है क्योंकि टॉलिन का डेरिवेटिव है। NH2 ग्रुप लगा दिया, साइड चेन में लगा दिया CH2NH2, अभी मैंने बताया था बेंजाइल कहलाता है जबकि CCH5CH2 है तो बेंजाइल अमीन, और इसका नाम हो जाएगा फिनाइल। वैसे अगर IUPAC नेम लेंगे तो फिनाइल मेथेन अमीन, फिनाइल मेथेन अमीन। अगर सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो लगेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या कहलाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगला है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अगर CN या NC ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हैं तो एरोमेटिक साइनाइड कंपाउंड कहलाएंगे। तो CN लगाया तो बेंजोनाइट्राइल, और अगर ये NC लगाया तो फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका? फिनाइल आइसोसाइनाइड। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली NO2 ग्रुप लगाया तो वो कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड कहलाएंगे और ये कंपाउंड कहलाएगा नाइट्रो बेंजीन्स। कहने का मीनिंग ये है आपका कि जो बेंजीन रिंग है उससे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगने पर हमें डिफरेंट क्लास एरोमेटिक कंपाउंड्स के मिलते हैं, और उनका जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके नेम के बेस पर उनके डेरिवेटिव्स के नेम हम डिसाइड
करते हैं। ये मैंने आपको अलग अलग क्लास के जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, सिंपलेस्ट आइसोमर्स हैं या सिंपलेस्ट फॉलोअर्स हैं, उनको बारे में बता दिया। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके चला हूं जो मुझे लगा कि डिस्कस करनी चाहिए आप लोगों से। सम प्रॉब्लम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला, ये देखिए बेंजोइक एसिड कहलाता है, लेकिन इस पर NH2 ग्रुप लग गया तो 1 2 3 4 अमीनो बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पर इसमें बेंजीन रिंग से 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, Cl NO2 NO2। अब देखिए Cl चूंकि NO2 से हमने ऊपर, और यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं है, जब इस तरह के तीनों ही प्रीफिक्स वाले ग्रुप लगे हों जिनका प्रीफिक्स यूज करना है, तब हम केवल लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स बना है। तो अब जब भी मैंने बताया एक से अधिक लगे होंगे प्रीफिक्स वाले, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो, दो एक जैसे ग्रुप में डाई नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट है, एक मैंने एल्डिहाइड लगाया है और एक OCH3, ये ईथर है, क्या है आपका ईथर। 1 2 3 4। अभी इसको हम क्या कहते हैं, मिथॉक्सी, क्योंकि एक ही OCH3 O मिथॉक्सी। तो 1 2 3 4 OCH3 तो मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 4 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पर एक ईथर लगा हुआ है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एक Cl ग्रुप लगा हुआ है। फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के बेस पर करेंगे 1 2 3 4 2 क्लोरो 4 मिथाइल। और ये जो बेंजीन रिंग पर अगर हमें ईथर अगर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है तो इसको एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंपाउंड को, एनिसोल। तो ये हो जाएगा नाम इसका 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। नेक्स्ट वन, अब देखिए यहाँ पर एक मैंने COH ग्रुप लग रखा है बेंजीन से, एक Br लग रहा है, एक NO2 लग रहा है और एक OH लग रहा है। अनडाउटली जो COH है वो सबसे प्रीफरेंस में ऊपर है, तो इसका ही सफिक्स आएगा। उसके बाद Br NO2 OH, ये तीनों ही प्रीफिक्स यूज होंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज होंगे। तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। दोबारा बोल रहा हूँ, ये तीन जो ग्रुप हैं Br NO2 OH, ये तीनों ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एक और मैंने कंपाउंड लिया है जिसमें कि मैंने जो चेन है साइड चेन, उसमें एक अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है और एक क्या है OH ग्रुप है। अब देखिए 1 2 3 कार्बन की चेन है जिसमें कि पहले से OH ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हम इसको अगर नॉमनक्लेट करना है, नाम देना है, तो नाम क्या देंगे, मैंने बताया ये फिनाइल के रूप में लिखा जाएगा। 3 पर क्या है, फिनाइल बेंजीन है, इसको फिनाइल दे दिया नाम, 3 फिनाइल। 3 कार्बन की चेन है प्रोप, 2 पर डबल बॉन्ड है 2 इन 1 ऑल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल इन 1 ऑल या प्रोप 2 इनॉल। तो इस तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग से अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तब उनको प्रीफरेंस के बेस पर नॉमनक्लेट करेंगे, और अगर साइड चेन वाला कोई कंपाउंड है तो उसको बेंजीन रिंग को हम फिनाइल के रूप में नाम देते हुए और बाकी जो चेन में जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके आधार पर उसका सफिक्स लिखेंगे। तो इस तरह से हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का हम क्या है आपका नॉमनक्लेचर कर सकते हैं। अगला है आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन, इंपॉर्टेंट वन। आजकल इसके बेस पर भी न्यूमेरिक क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लेते हैं बोर्ड में। समटाइम्स द बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस एंड कार्बन एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइन एंड इंटरसेक्शन। कहने का मतलब ये है, मीनिंग ये है कि जब कभी कभी किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें की जो इंटरसेक्शन है, जो जहां पर मीट कर रही है लाइंस, वो कार्बन की पोजीशन को, और उनके एंड पर अगर कोई दूसरा कोई लेटर नहीं लिखा है तो वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कार्बन हमेशा एंड को और उनके इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। कहने का एन पेंटेन, हम इसका स्ट्रक्चर लिखें तो हम जानते हैं CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5। अब ये 5 कार्बन है, उसको हम बॉन्ड लाइन में रोटेट करना है तो जिगजैग लाइन से डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये सिंगल लाइन है, तो ये एल्केन को डिनोट कर रहा है और हर एंड जो है वो कार्बन को डिनोट कर रहा है। बाकी अगर कोई दूसरा कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम नहीं लगा है तो हम बताते हैं कि कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाइड है। तो ये एन पेंटेन को अगर हमें डिनोट करना है तो इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अगला लिया है ब्यूटूइन को, तो ब्यूटूइन को डिनोट करने के लिए ब्यूटूइन का स्ट्रक्चर पहले हमने बनाया सिंपल, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दो जो कार्बन है उन पर तो तीनों हाइड्रोजन है और सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। तो पहले हम 4 कार्बन 4 लाइन मतलब
का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे 1 2 3 4, जहां पर ये दो इंटरसेक्शन है और ये दो एंड कार्बन है। अब देखिए इंटरसेक्शन के बीच में सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, मैंने यहाँ प्लेस कर दिया डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, तो ये क्या होगा ब्यूट-2-ईन। एक मैंने नेक्स्ट लिया है 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। अब देखिए 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन, पहले पर और तीसरे पर डबल बॉन्ड और सेकंड पर क्या है आपका मिथाइल ग्रुप, 1 2 3 4, पहले और तीसरे पर डबल बॉन्ड लगा दिया है, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका स्ट्रक्चर बना। हमें बॉन्ड लाइन डिनोट करनी है तो पहले हम 4 कार्बन बिछाएंगे, 1 2 3 4, हमने 4। अब फर्स्ट और थर्ड पर डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट और सेकंड के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया और थर्ड और फोर्थ के बीच डबल बॉन्ड लगा दिया। सेकंड पर क्या लगा होता है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, तो सेकंड पर हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। यहाँ पर मीनिंग ये है कि सेकंड का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किससे हो गया, मिथाइल ग्रुप से हो गया। तो इस तरह से इसका नाम होगा 1 2 3 4 देंगे तो 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाइईन। एक मैंने और लिया है एक साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑल, ये साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है, 2 in पर सेकंड और थर्ड के बीच डबल बॉन्ड है, 1 ऑल का मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है। अब जैसे इसका नाम देना है हमें, ये है Br, यहाँ से ये Br लगा है, यहाँ पर क्या है O डबल बॉन्ड O, इसका मतलब कीटोनिक ग्रुप है क्योंकि इधर भी एल्काइल ग्रुप है इधर भी एल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं यहाँ Br लगा है, तो इसका मतलब ये कार्बन नहीं है ये एंड पर, बल्कि ये एंड कार्बन है, इस पर एक Br जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन है वहां से शुरू करेंगे नंबरिंग 1 और फंक्शनल ग्रुप ये पास पड़े तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये हुआ कहने का मतलब कि जो लास्ट वाला है, देखिए अब मैंने बताया था एंड जो है वो कार्बन को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पर एंड पर क्या लगा हुआ है Br, तो ये एंड कार्बन को डिनोट नहीं कर रहा बल्कि इससे पहले वाला जो है ये जो एंड है वो कार्बन को डिनोट कर रहा है, इस पर एक Br है। तो यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन बनी और सेकंड पर क्या कीटोनिक ग्रुप है, 1 पर क्या लगा हुआ है Br, तो इसका प्रीफिक्स आएगा 1 ब्रोमो पेंट 1 ब्रोमो। देखिए 3 पर एक ये छूट गया है एल्काइल ग्रुप, ये लाइन जो छूट रही है ये डिनोट कर रही है यहाँ पर एंड कार्बन हो गया ये, फिर तो यहाँ पर अब कुछ नहीं है तो CH3 को डिनोट कर रहा है, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। देखिए यहाँ पर मैंने एक ये छूटा हुआ है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर थर्ड पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है हमें, तो देखिए यहाँ पर अब ये साइड चेन है, इसमें एक साइक्लोहेक्सेन रिंग लगी हुई है। अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, यहाँ ऊपर तक जा रहे हैं, ये थर्ड से ये जुड़ गया, यहाँ पर 4 नहीं देंगे नंबर, हम थर्ड ही रह गया, 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनी। थर्ड पर क्या लगा हुआ है आपका साइक्लोहेक्साइल रिंग लगी हुई है, तो 3 साइक्लोहेक्साइल। अब ब्यूटेन और सेकंड पर क्या लगा हुआ है OH, 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 ऑन, 1 2 3 4, थर्ड पर साइक्लोहेक्साइल होगा 3 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट अगला, अब इसका देखिए यहाँ पर यहाँ H लगा दिया है, तो इसका मतलब इस कार्बन यहाँ पर कार्बन नहीं है बल्कि कार्बन कहाँ पर है, ये है C और यहाँ पर देखिए फिर क्या लग गया Cl, तो इसका मतलब केवल कार्बन 3 कार्बन की चेन है 1 2 3। थर्ड कार्बन से क्लोरीन लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड OH CHO, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया आपका एल्डिहाइड। और थर्ड पर क्या लग गया क्लोरो, तो थर्ड 3 क्लोरो 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन अल, 3 क्लोरो प्रोपेन अल। अब देखिए इसमें ये फिर यहाँ पर क्या लग गया CN, तो यहाँ पर कार्बन नहीं है, इसका CN का कार्बन है लेकिन वैसे एंड पर कार्बन नहीं है बल्कि इस पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ CN, तो इस कार्बन को नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनी। थर्ड पर एक मिथाइल ग्रुप छूट गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। नेक्स्ट वन, देखिए यहाँ पर हमने देख रहे हैं ये वाला जो इंटरसेक्शन है, यहाँ कार्बन जो उस पर एक Cl लगा हुआ और एक Br लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन है, थर्ड पर ही एक Cl लगा हुआ और एक Br, तो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। तो इस तरह से हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में नंबरिंग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट वन, इसके बाद राइटिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड्स। उल्टा कर रहे हैं अब हम कि अगर कोई IUPAC नेम कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है हमको और कोई नाम दिया है। अभी तक हमने क्या किया था, स्ट्रक्चर से नाम लिखे थे, वी हैव डन द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द given structure. Now we have to write the structure on the basis of the given name of the compound. For writing structure of organic compound from IUPAC name,
फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलो। पहला, कंस्ट्रक्ट लॉन्गेस्ट चेन अकॉर्डिंग टू वर्ड रूट। सबसे पहले वर्ड रूट को हम देखेंगे, उसके बेस पर कार्बन की उतनी लंबी चेन हम डिजाइन कर लेंगे या कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें सफिक्स देखेंगे, कौन सा प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स मैंने आपको बताया मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके बाद हम उस आइडेंटिफाई नेम एंड पोजीशन ऑफ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, फिर उसके बाद प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का नाम यानी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है और उसकी पोजीशन क्या है। नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम सेकेंडरी है उसका हम सफिक्स लिखेंगे, और जो अगर कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट है तो उनका प्रीफिक्स लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर एक से अधिक है। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये है। तो जब 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल लिखा हुआ है यहां पर, अब यहां पर देखिए प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। तो हमने यहां पर 1 2 3 कार्बन की चेन लगा दी, सेकंड पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। 2 ऑल है तो सेकंड पर ही क्या लगा दिया हमने, OH लगा दिया। तो 1 2 3 2 मिथाइल। बाकी यहां पर करते क्या है, पहले कार्बन हम स्केलेटल क्या है आपका ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है वो लगा दिया, एल्काइल ग्रुप है वो लगा दिया। उसके बाद बाकी सारी वैलेंसीज 4 पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। यहाँ पर इस कार्बन से साइड में कार्बन से उनके 1 बॉन्ड है, सिंगल है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, 3 यहाँ लगा दिए। इस कार्बन जो मिडिल कार्बन है उसकी चारों वैलेंसीज फुलफिल है, इसलिए एक भी हाइड्रोजन प्लेस नहीं किया है। नेक्स्ट कंपाउंड 3 क्लोरो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए ये कंपाउंड कह रहा है ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है तो इसका मतलब 4 कार्बन हम लगा देंगे। तो हमने देखिए 1 2 3 4, 3 क्लोरो, 3 पर क्या है आपका 1 2 3, थर्ड पर क्लोरो लगा दिया, 2 डाइमिथाइल, सेकंड पर ही 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए हमने। बाकी हमने वैलेंसी क्या कर दी, हाइड्रोजन से पूरी कर दी। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आया, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन आ गया, दोनों एंड कार्बन पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। नेक्स्ट 1 इथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल, फिर अगेन प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन ड्रॉ करी हमने 1 2 3, 1 इथॉक्सी, 1 कार्बन से क्या इथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, OC2H5, हम जानते हैं OR ग्रुप, एल्काइल OR ग्रुप एल्कोक्सी, तो OC2 इथॉक्सी लगा दिया। यहाँ पर क्या है, एक बॉन्ड है तो CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब प्रोपेन 2 ऑल है तो सेकंड कार्बन पर हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, क्या लगा दिया आपका OH। ये देखिए ये क्या है आपका प्रीफिक्स हो गया इथॉक्सी, ये क्या हो गया आपका सफिक्स और OH। तो इस तरह से ये इसका नाम 1 इथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल था, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा CH2 CHOH बॉन्ड CH3, साथ ही क्या आ जाएगा OC2H5। अगला है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। अब देखिए ब्यूटेन फिर आ गया, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए, स्केलेटल बना लिया। अब 2 मिथाइल, सेकंड पर मिथाइल था, हमने CH3 इससे अटैच कर दिया। 1,3 डाइऑल है तो फर्स्ट कार्बन पर OH लगाएंगे और थर्ड पर OH लगाएंगे। तो हमने डाइऑल के लिए 1 और थर्ड पर लगा दिया, बाकी जो बैलेंसीज है कार्बन की वो हाइड्रोजन से पूरी कर दी, जिससे कि बैलेंसी कार्बन की 4 हो जाए। नेक्स्ट 2 मिथाइल प्रोपेनल 2 फिनाइल प्रोपेनल। अब फिनाइल ग्रुप है, 3 कार्बन हमने लगाए साइड चेन से और सेकंड कार्बन से हमने क्या हुआ, फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया। प्रोपेनल है तो फर्स्ट कार्बन कौन सा हो जाएगा, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, CHO, 1 2 3 CH3 CHO, और क्या हुआ सेकंड पर क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप। अगला लास्ट वन 4 फॉर्माइल पेंटेनॉइक 2 मिथाइल पेंटेनॉइक एसिड, 4 फॉर्माइल 2 मिथाइल पेंटेनॉइक एसिड। अब देखिए 2 प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें, एक फॉर्माइल है और एक क्या है आपका बेंजोइक एसिड है। इसका मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, साथ में एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। लेकिन यहाँ सबसे पहले वर्ड रूट पकड़ेंगे, पेंटेन 5 कार्बन ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5, 4 पर फॉर्माइल CHO ग्रुप लगा दिया, और सेकंड पर क्या लगा दिया हमने, मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, मिथाइल। तो 2 मिथाइल हो गया, ये पेंटेनॉइक एसिड आ गया और ये फॉर्माइल आ गया, COH CH CH3 CH2 CH CH3 एंड CHO इज अटैच टू दैट 4th कार्बन CHO। सो इस तरह से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अगर कहीं हमें नेम दे रखे हैं। नेक्स्ट वन, लास्ट वन फ्रॉम दिस वीडियो, दैट इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड एंड देयर नोमेनक्लेचर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। जनरली 12th स्टैंडर्ड पर कम दिया हुआ है इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं।
दोज कंपाउंड्स कंटेन टू रिंग्स और कॉल्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए बाई माने दो, साइक्लिक मीन साइक्लिक रिंग। अगर दो साइक्लिक रिंग हैं किसी कंपाउंड में तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। इनके दो तरह टाइप्स हैं। अगर दो रिंग किसी एक कार्बन के द्वारा शेयर हैं, जैसे कि इसमें मैं दिखा रहा हूं, ये 4 कार्बन की रिंग है और एक 4 कार्बन की रिंग है, लेकिन यहाँ पर आकर अटैच हो गई है एक कार्बन से, तो 3 इधर रह गए इधर और एक 3 इधर रह गए। तो ऐसे कंपाउंड जो कि शेयर करते हैं, जिनमें दो रिंग शेयर करती हैं केवल एक कार्बन को, वो स्पायरो कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? स्पायरो कंपाउंड, स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड शेयरिंग वन कार्बन। आई एम showing here. If the two rings share two adjacent carbon in the compound is fused or called fused bicyclic compound. अगर दो रिंग हैं और दोनों एडजेसेंट कार्बन को, जैसे यहाँ पर एक और दो एडजेसेंट कार्बन, इनको क्या हो रही है आपको शेयर कर रही हैं, तो फ्यूज्ड रिंग कहलाएंगे, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। यहाँ देखिए दोनों में, यहाँ पर दोनों ही 6 कार्बन की रिंग है जो कि 2 कार्बन शेयर कर रही है, यहाँ पर एक 5 कार्बन की रिंग है और एक 6 कार्बन की है जो कि 2 कार्बन शेयर कर रही है एडजेसेंट। तो ये फ्यूज्ड कार्बन है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर कहीं इफ द टू रिंग्स शेयर मोर देन 2 कार्बन द कंपाउंड इज ए ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अगर कहीं दो रिंग 2 से अधिक कार्बन शेयर करती हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में, दो रिंग, तो कहलाते हैं ब्रिज्ड कार्बन। देखिए यहाँ पर क्या है आपका 1 2 3 कार्बन शेयर हो गए, एक ये रही आपकी रिंग और एक ये रही, और यहाँ पर कौन सा है आपका 1 2, ये दोनों ब्रिज हेड कहलाएंगे और ये क्या कहलाएगा आपको? ब्रिज कार्बन कहलाएगा। अब कैसे नेम कैसे देखेंगे इनका? बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स आर नेम्ड by using alkane name to designate the total number of carbon atom, and prefixes bicyclo or spiro is used to indicate share carbon, spiro for one share carbon and bicyclic for 2 shared carbon। कहने का मीनिंग ये है, जब भी कभी बाईसाइक्लिक कंपाउंड का लिखेंगे, अगर कोई एल्केन है उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उनका जो पेरेंट एल्केन है उसका नाम दिया जाता है, और वर्ड स्पायरो लगाएंगे अगर दो रिंग एक कार्बन शेयर कर रही हैं, और बाईसाइक्लिक लगाएंगे अगर दो रिंग हैं उसमें 2 कार्बन शेयर कर रही हैं। आफ्टर प्रीफिक्सेस स्पायरो और बाईसाइक्लिक ए ब्रैकेट इज यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ईच ब्रिज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर जो ब्रिज कार्बन है, दोनों तरफ रिंग में जितने कार्बन है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ब्रैकेट में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया है एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि 2 ब्रिज हेड हैं, 1 2, और इधर देखिए ब्रिज हेड का कार्बन हम काउंट नहीं करते हैं। इधर कितने कार्बन रह गए? 1 और 1 2, और यहाँ पर भी कितने रह गए? 1 2, और बीच में कितना कार्बन आ गया? 1। तो इस तरह से ये रिंग है, इसमें 2 कार्बन साइड में है 2 रिंग में और एक ब्रिज कार्बन है। तो इस तरह से अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे 2, 2, 1। ब्रिज हेड कार्बन को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते, नंबर नहीं देते हैं। ये जो ब्रिज हेड कहलाते हैं जहाँ से रिंग जुड़ी हुई है। आइए देखिए सबसे पहले ये एक स्पायरो कंपाउंड मैंने शो किया है यहाँ पर, जिसमें 2 रिंग एक कार्बन शेयर कर रही हैं। अब देखिए इस स्पायरो कंपाउंड में इस जो हमारा शेयर्ड कार्बन है उससे एक और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और इधर कितने कार्बन है? 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा स्पायरो। अब कुल कितने कार्बन है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें जनरली कितने कार्बन है? टोटल 8 कार्बन है, तो इसलिए रहेगा तो ऑक्टेन। लेकिन स्पायरो 4,3 जो ब्रिज कार्बन है या हमारा जो शेयर्ड कार्बन उससे एक और 4 कार्बन है और एक और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो नाम आया स्पायरो। ब्रैकेट में हमने लिखेंगे 4,3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 8 एयर, तो कंपाउंड हो जाएगा ऑक्टेन। अब देखिए कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड हमने दिया है जिसमें कि ये 2 ब्रिज हेड कार्बन है और एक क्या है? ब्रिज कार्बन है। ये इधर 2 कार्बन रह गए और इधर 2 कार्बन रह गए और बीच में 1 कार्बन रह गया, तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो 2 2 1, 2 2 और लास्ट में ये वाला ब्रिज कार्बन 1, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, तो इसलिए क्या नाम हो जाएगा इसका? हेप्टेन। तो बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। नेक्स्ट वन, अब इस रिंग में देखिए फिर यहां पर ब्रिज कार्बन आ गया, ये फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। जब भी कभी बाईसाइक्लो कंपाउंड को हम नेम करेंगे तो जो हमारी बड़ी रिंग है उससे नंबरिंग शुरू करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में ब्रिज कार्बन को नंबर देंगे 8। तो टोटल नंबर हमें कार्बन आ जाएंगे। फिर बाकी हम इधर देखेंगे 1 2, कितने कार्बन है इधर? 1 2 3, ये दोनों ब्रिज हेड हो गए, नंबरिंग नहीं करनी है। 3 इधर रहे और इधर कितने रहे? 2 और एक बीच में रहा ये ब्रिज कार्बन। तो बाईसाइक्लो इधर 3 कार्बन फ्री हैं, यहाँ पर 2 कार्बन फ्री हैं, 3 2, और बीच में 1 कार्बन फ्री है 1, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 है, इसलिए ऑक्टेन। एक और थोड़ा सा लेके चल रहे हैं ये अभी। अब देखिए इसमें अब बीच में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये ब्रिज है, ब्रिज में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, एक और एक 2 बीच में,
ये दोनों ब्रिज हेड रहे, इधर कितने कार्बन रहे 2, इधर भी कितने कार्बन रहे 2, यहाँ भी कितने कार्बन हुए 1 और 1 2। तो इसका नाम हो जाएगा वाई साइक्लो 2,2,2, दोनों तीनों में बीच में भी 2 कार्बन, इधर साइड में 2 कार्बन बच गए, इधर भी 2 कार्बन ब्रिज से इधर। तो 2,2,2 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8 हैं, तो ऑक्टेन, बाई साइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। नेक्स्ट वन, अब देखिए यहाँ पर ये 2 एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं, 2 रिंग्स हैं, 1 2 3 कार्बन है यहाँ पर, इधर कितने कार्बन है 2, तो 3, और बीच में कोई कार्बन नहीं है। अब यहाँ देखेंगे आप, बीच में कहीं कार्बन आया है ब्रिज हेड से, नहीं आया है, तो इसलिए 0 रहेगा। अब लेकिन इसमें क्या हुआ है, इन्होंने एक साइड में इधर Br लगाई और इधर क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया है। हमने बताया जो बड़ी रिंग है उससे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7 हैं, तो नाम दिया जाएगा 3 ब्रोमो, पहले की तरह लिखेंगे 6 मिथाइल, 3 ब्रोमो 6 मिथाइल, क्योंकि नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे साइक्लिक, पहले बड़ी चेन से करते हुए छोटी चेन की ओर आते जाएंगे, और लास्ट में अगर ब्रिज कार्बन होता तो उसको नंबरिंग देते, लेकिन यहाँ ब्रिज कार्बन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने रहे 7 रहे, और जिसके थर्ड पर क्या लगा ब्रोमो, 3 ब्रोमो 6 मिथाइल, बाई साइक्लो वर्ड यूज किया क्योंकि 2 रिंग है, बाई साइक्लो, एक तरफ 3 कार्बन एक तरफ 2 कार्बन, बीच में 0, 3,2,0, 7 कार्बन के लिए क्या आ गया हेप्टेन, 3 ब्रोमो 6 मिथाइल बाई साइक्लो 3,2,0 हेप्टेन। तो इस तरह से हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेट कर सकते हैं या इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इस तरह से आई होप दैट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द हाउ टू नॉमेनक्लेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डू प्रैक्टिस for the nomenclature of organic compounds. If you have problem, then you may ask me directly in comment section. Thanks for watching the video and share it, like it, and tell your friends to subscribe my channel. We'll meet with a new topic. Thanks for watching the video.